Hello friends, in this lecture we will discuss the new chapter, that is polymers. The name of chapter is Introduction to the Polymer Chemistry. So in this chapter we go through the different types of polymers depending upon the source, depending upon their chemical structures, depending upon the mode of polymerization, depending upon their force of attraction between them, and whether they are biodegradable or non-biodegradable. So we will learn some applications, uses of polymers and classification of polymers. So first of all, what is the definition of polymer? Polymers are the macromolecules having higher molecular weight compounds with smaller repeating unit are called as monomers. So polymers are the macromolecules in which the smallest repeating unit undergoes either condensation or addition polymerization gives formation of different polymers. The smallest repeating unit is called as monomers. In this reaction, the monomer react with another monomer gives formation of dimer. Dimer again react with third monomer, it gives formation of trimer, and trimer on further chemical reaction gives tetramer, and finally it gives polymerization. So polymers, poly means many and merons means part. So when many parts are combined gives corresponding polymers. So let's take the example of it. What are the polymers? Here we have example of PVC, that is polyvinyl chloride. Okay. So repeating unit in this structure, the repeating unit is monomer. यहाँ पे repeating unit जो है monomer that is vinyl chloride. Vinyl chloride, CH2 double bond CH and Cl. Okay. It is called as vinyl chloride. So vinyl chloride reaction generally हम लोग ऐसे लिखे हैं, when n number of vinyl chloride CH2 double bond CHCl, this is a monomer of this PVC undergoes polymerization reaction. क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, सेकंड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा CH Cl, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे अटैक करेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट CH2 CHCl CH2 CHCl. So this is your repeating unit. ये complete. So undergoes polymerization reaction, it gives a repeating unit CH2 CHCN Cl. This is a repeating unit, and repeating unit के आगे आपको खाली n लगा देना है, तो you will get corresponding polymers, that is CH2 CHCl, that is PVC, polyvinyl chloride. Okay, so it is a structure of PVC. ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे. जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं रिपीटिंग यूनिट, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग, उसमें से ये एरो जो है दोनों बॉन्ड जो हम लोग जनरली बाहर निकालते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन यहाँ से भी कंटिन्यूशन में और आगे भी कंटिन्यूशन में रिएक्शन रहेगा. सो मोनोमर के आगे n, पॉलीमरेशन, रिपीटिंग यूनिट PVC, इसके n नंबर ऑफ मोल्स आपको लिखने हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमेरिक रिएक्शन और पॉलीमर्स. यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉलीमर देखा, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड का एक एग्जाम्पल देखे. अगेन हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज पॉलीईथीन. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पॉलीथीन वाला. So there are different examples. The natural polymers, that is nail, keratin, protein, DNA, polythene, nylon 6. These are the different example of polymers. दूसरा polythene. Okay.
पॉलीइथीन. सो अगेन मोनोमर इन दिस रिएक्शन, मोनोमर जो रहेगा इसका that is ethene molecule, CH2 double bond CH. It is a monomer of polyethene. Again n number of ethene molecules, CH2 double bond CH2, undergoes polymeric reaction, polymerization reaction, undergoes polymerization. तो क्या होगा, एक इथीन मॉलिक्यूल दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड. आगे रिएक्शन कंटिन्यूशन में रहेगा और यू विल गेट रिपीटिंग यूनिट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. तो दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट. जो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग यूनिट. तो यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग यूनिट लिखेंगे CH2 ओके. और इसी रिएक्शन में अब लोग CH2 आगे एन लगा देंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीथीन. इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीथीन. ये इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन, इट गिव्स पॉलीथीन मॉलिक्यूल. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स. डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया. व्हाट आर द पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स having higher molecular weight compound. They are composed of smallest number of repeating unit, that is called as monomer. और monomer again repeat होगा one by one, तो it gives formation of dimer, trimer, tetramer and finally it gives formation of polymer. So depending upon, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तरफ, कि हाउ पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तरफ हम लोग जाते हैं. Classification of polymer, generally depending upon first source, कहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं. सोर्स आइदर नेचुरल रहेगा, सेमी सिंथेटिक रहेगा, सिंथेटिक रहेगा, डिपेंड करता है किस सोर्स से हम लोग उसको ले रहे हैं. फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स. सेकंड थिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स. Third one, depending upon the mode of polymerization. Mode of polymerization. Mode of polymerization. Fourth, depending upon the molecular force in between the molecular force in between them. Fifth one, depending upon their biodegradability. Whether they degraded by natural degradation process or not, depending upon their degradability. So source, chemical structure, mode of polymerization, molecular forces and biodegradability. So polymers are classified on the basis of these five things. They are classified into 5 different types. First हम लोग स्टार्ट करते हैं source. Depending upon the source, again the polymers are classified into 3 types. Classification of polymer depending upon source. First देखते हैं हम लोग classification of polymers depending upon source or based on source. They are classified again 3 types. Polymers on the basis of their source, they are classified into 3 types. First one is a natural, second one is synthetic, and third one semi-synthetic. They are classified into 3 types: natural, synthetic and semi-synthetic. So first start करते हैं, what is a natural polymers? Natural polymers,
What are the natural polymers? The polymers which is obtained from the natural source. They are obtained from natural source like plant or animal. Plant or animal are called as natural polymers. So the polymer which is obtained from the natural sources, either from the plant or animal. So when we discuss from plants, जब हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट में हम लोग देखेंगे सेल्यूलोज, जूट, उसके बाद लिनिन एंड रबर. These are the different examples of polymers depending upon the natural source. जो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से हम लोगों को सेल्यूलोज जो लकड़ी से मिलता है, जूट, लिनिन, रबर, these are the natural sources प्लांट से मिलते हैं. That's why all these polymers are called as natural polymers and they are obtained from the plants. Some polymers, their source is also natural, उनके source जो है वो naturally है, but they are obtained from animals, जिसमें हम लोग देखेंगे ऊल और सिल्क. सो ये अलग अलग टाइप है उसमें कि polymers which is obtained from the natural sources like plant or animal, they are called as natural polymers. From plants में हम लोग देखेंगे सेल्यूलोज, जूट, लिनिन, रबर, और फ्रॉम एनिमल्स यहाँ पे है वुड और सिल्क. ओके, तो ये थे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स. बढ़ते आगे, सेकंड टाइप, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर. व्हाट आर द सिंथेटिक पॉलीमर? Synthetic polymer, the polymer which is completely man-made, the polymers which are man-made, synthesized into the laboratory, obtained from different chemicals, obtained by the chemical reactions, they are synthesized into the laboratory or industries. These are the called as synthetic polymer. The polymer which is completely man-made, obtained from chemical reactions से वो मिलेंगे हम लोग, chemical reactions. They are synthesized into the laboratory, laboratories or in industries. These polymers are called as synthetic polymer. तो एग्जाम्पल हम लोग इसके देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर बिकॉज इसका सोर्स जो है वो कम्प्लीटली मैनमेड, केमिकल रिएक्शन से उनको ऑब्टेन किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे तो टेरिलिन, ओके, टेरिलिन, पॉलीथीन, polyvinyl chloride. So these are the different example of synthetic polymer. Synthetic polymers completely man-made होते हैं, obtained from the chemical reactions. They are synthesized into the laboratory and obtained from different chemicals. Example देखिए नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीथीन और PVC, polyvinyl chloride. Okay, so बढ़ते आगे थर्ड टाइप की तरफ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. So what are the semi synthetic polymers? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर्स जिसका हाफ सोर्स नेचुरल होता है, द हाफ सोर्स इज नेचुरल एंड हाफ सोर्स इज केमिकली मॉडिफाइड और मॉडिफिकेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड बाय केमिकल ट्रीटमेंट. सिंपल सी बात है कि जिसमें हाफ सोर्स, सपोज कॉटन यूज़ किया हम लोगों ने, तो कॉटन की केमिकल ट्रीटमेंट करके हम लोग उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी या
टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो है नॉर्मल प्रॉपर्टीज उनको हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे। सिल्क जो है जिसको कॉपर और अमोनिया के क्यूपरा अमोनियम सिल्क हम लोग सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो जिसका हाफ सोर्स नेचुरल है, हाफ सोर्स सिंथेटिक रहेगा, मतलब हाफ सोर्स इज नेचुरल and half source is chemically modification. The properties of natural polymers are modified by some chemical treatment. So the properties of natural polymers are modified by using chemical treatment. Okay, so let's do the example of this. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो सेलुलोज ये नेचुरल ऑप्टेनिंग पॉलीमर है। व्हेन रिएक्ट विथ एसीटेट इट गिव्स सेलुलोज एसीटेट रेयन, जिसका हाफ सोर्स नेचुरल है और उसमें एसीटेट की ट्रीटमेंट करके हम लोग सेमी सिंथेटिक टाइप ऑफ पॉलीमर जनरेट करेंगे। इसके एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखने वाली है, ये जस्ट क्लासिफिकेशन हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिल्क, तो क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, सिल्क पे हम लोग कॉपर और अमोनिया का ट्रीटमेंट करके उसके प्रॉपर्टीज जो है नेचुरल प्रॉपर्टीज को और मॉडिफाइड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉलीमर्स based upon the source. They are classified into natural, synthetic and semi-synthetic. What are the natural polymers? The polymers which are obtained from the natural source like plant or animal. Plant से हम लोगों ने देखे they are man-made, they are obtained from plants, that is cellulose, jute, lignin or rubber. From animals, wool, silk, these are the different examples. Okay, उसके बाद हम लोग बढ़े आगे synthetic polymers की तरफ. What are the synthetic polymer? These are the polymers which are completely man-made, obtained by the chemical reaction. They are synthesized into the lab or industries. Example देखें nylon, toluene, polythene, okay, polyvinyl chloride, PVC, different example वहाँ पे. फिर आगे बढ़े हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की तरफ. What are the semi-synthetic polymer? The properties of natural polymers are modified by some chemical treatment. नेचुरल पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी जो है उनको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करके और मॉडिफाइड करेंगे. ओके, मीन्स देयर हाफ सोर्स इज नेचुरल एंड हाफ सोर्स इज केमिकली मॉडिफिकेशन. ओके, एग्जांपल देखिए कि सेलुलोज when treated with acetate it gives formation of cellulose acetate rayon. Cupra ammonium silk, these are the best example of semi synthetic polymer. आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, that is based upon the structures. Polymers classification based on the structure. Classification of polymer based on structure. So polymers based upon structures are classified into again three types. First one, it is a linear polymer. Second is branch polymer. And third one is cross-link or network polymer. Okay, so depending upon the structure, either they are continuously bind with each other and gives a longest continuous chain, उस पॉलीमर को बोलेंगे लीनियर पॉलीमर. The longest continuous chain with small branching, they are called as branch polymer. Okay, and the polymers which undergoes cross-linking network polymers, cross-linking bonds, they are called as cross-link network polymers. So देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग what are the linear polymers. एग्जाम्पल के साथ जाएंगे इनके. So what are the linear polymers? The linear polymers which is made up of long continuous chains of
chains, continuous chains of, these are the made up of longest continuous chains of polymers without branching, without branching, without branching. So what are the linear polymer? These are the polymers which is made up of longest continuous chains of polymers without excess branching or without branching, joined by the continuous chains. They are joined by the continuous chain. Okay, so let's take the example of this. For example, polythene. For example, polythene. Okay, so what is the monomer of polythene? एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिए हम लोगों ने. मोनोमर है इथिन मॉलिक्यूल, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. क्या मिलेगा आपको? रिपीटिंग यूनिट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट. Okay, which on continuation of reaction gives CH2 and that is polythene. Okay, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. CH2 एक दूसरे के साथ लॉन्गेस्ट चेन जो जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन. एक इथिन मॉलिक्यूल दूसरे इथिन मॉलिक्यूल के साथ रिपीट होगा, तो इथिन इट इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, रिपीटिंग यूनिट और पॉलीथीन मॉलिक्यूल्स. तो ये जो चेन है एक कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन में जाएंगे विदाउट एनी ब्रांचिंग. सो दीज आर द मेड अप ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन्स आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर. आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ. दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है, दूसरा टाइप अपने पास है, दैट इज ब्रांच पॉलीमर. branch polymer. What are the branch polymer? The polymers consist of, the polymer consist of long straight chain, long straight chain with smaller chain as a branching. Okay, so what are the branch polymer? The polymer chains which is consist of longest chain with small chain as a branching, and they have, the important point is they have low density. Why they show low density? Because ब्रांचिंग की वजह से बाइंडिंग जो है उतनी यूनिफॉर्म हो नहीं पाती, जिसकी वजह से चैनल, एयर चैनल बच जाते हैं मॉलिक्यूल में, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एयर चैनल्स उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है. ओके, सो व्हाट आर द ब्रांच पॉलीमर? द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन विदाउट स्मॉलर चेन एज अ ब्रांचिंग, एंड दे आर ऑफ लो डेंसिटीज. तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई द ब्रांच पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स ऑफ लो डेंसिटी. तो उसका रीज़न ही है कि ड्यू टू ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल कैनॉट बी कम्पैक्टली अरेंज विथ ईच अदर, तो जिसकी वजह से वैकेंट स्पेस ज़्यादा बच जाता है और उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, डेंसिटी उनकी कम हो जाएगी. ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्रोपिलीन. एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने प्रोपिलीन मॉलिक्यूल का. सो मोनोमर इज प्रोपिलीन मॉलिक्यूल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये प्रोपीन, n नंबर ऑफ मोल लिए हम लोगों ने, अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन. तो ये जो है एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल CH3 डबल बॉन्ड CH2. तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्डिंग
CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट. Okay, undergoes polymerization CH CH3 CH2, repeating unit undergoes polymerization reaction CH CH2 CH3, n नंबर ऑफ मूव्स लिए तो प्रोपिलीन जो है उसके पॉलीप्रोपिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन और इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर. सो यहाँ पे ये जो नॉर्मल चेन है ये कंटिन्यूस चेन आपको मिलेगा विथ स्मॉलर ब्रांचिंग ऑफ CH3. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रांच पॉलीमर. द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विथ स्मॉलर चेन्स और स्मॉलर चेन्स एज अ ब्रांचिंग. तो यहाँ पे CH3 एज अ ब्रांचिंग वहाँ पे आपको मिलेगा. Okay, so this is an example of polypropylene. When propylene, n number of moles of propylene, it is a monomer of polymer polypropylene, undergoes addition type of polymerization. Repeating unit आपको ये मिलेगा. Polymerization हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं खाली normally, और it is gives a formation of polymer like polypropylene. So this is the longest continuous chain with small CH3 as a branching. छोटा CH3 जो है ये एज अ ब्रांचिंग वहाँ पे आपको मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टाइप, दैट इज बेस अपॉन स्ट्रक्चर, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन जो है इट इज अ क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर. क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर. So what is a cross link or network type of polymer? The polymer which consists of chains by strong covalent bond gives a network like structure. Use network like structure. So what are the cross linked polymers? The polymers which consist of chain held together by strong covalent bond gives a network like structure are called as cross link or network type of polymers. तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जांपल बैकेलाइट या फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. Vulcanization of rubber. What is the vulcanization of rubber? It is a process of hardening of natural rubber by addition of sulfur is called as vulcanization of rubber. Natural rubber जो होता है उसका हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर ऐड करते जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर और बैकेलाइट. बैकेलाइट हम लोग आगे फिर से एग्जांपल में देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है. इसमें दो टाइप होता है. एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, मतलब टू मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइन तो एक दूसरे के साथ वो ऐड होते हैं
या फिर दे कंडेंस बाय लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल. पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. एक है एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो स्टार्ट करते हैं. पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन? फर्स्ट वन, these are the polymers in which the molecules are added together. Two monomers are added together and gives formation of polymers. Okay, so इसमें important part इसका है the polymers or monomers with multiple bonds, मतलब they must contain double or triple bond in the structures. Mostly डबल और ट्रिपल बॉन्ड उनमें होता है. ओके, सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे इस पॉलीमर्स की खासियत ये होती है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन. दे आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन. They also called as chain growth polymerization. This process or addition polymers are also called as chain growth polymerization. Point number 3, these reactions are generally free radical reaction. Free radical reaction. जब addition reaction होगा polymerization में, addition polymerization की reaction जब होगी तो they undergoes or normally they follows फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती है. एक होती है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड वन चेन टर्मिनेशन स्टेप. So what are the addition polymers? Addition polymers are the monomers with multiple bond. They must contain और उनमें हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Second thing, the chain growth. They are called as chain growth polymerization. They also called as chain growth polymerization. And generally during the addition of monomers, in which during the addition of monomer, they always follows the free radical mechanism. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप को फॉलो करते हैं. चेन इनिशिएशन स्टेप. व्हाट इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप? इट इज अ स्टेप इन विच द रिएक्शन गेट इनिशिएटेड बाय फर्स्ट फ्री रेडिकल. यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं. उसके बाद फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होकर कार्बन का लेंथ बढ़ा देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज चेन प्रोपिगेशन. और फाइनली सभी फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नॉर्मली चेन रिएक्शन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका. द एग्जांपल ऑफ दिस इज ऑर्लॉन. व्हाट इज ऑर्लॉन? इट इज ऑल्सो ऑर्लॉन. द मोनोमर यूज इन ऑर्लॉन इज विनाइल साइनाइड. The monomer used in Orlon is vinyl cyanide. तो एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन पॉलीमर कैसे है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एडिशन पॉलीमर्स के. जैसे हम लोग बात करें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सभी जो है वो एडिशन टाइप के बेस्ट एग्जाम्पल है. एडिशन एग्जाम्पल या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन के बेस्ट एग्जाम्पल है. लेकिन ये जो अलग टाइप के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ऑर्लॉन में मोनोमर जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज विनाइल साइनाइड. इट इज अ मोनोमर. तो विनाइल साइनाइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, C ट्रिपल बॉन्ड, n नंबर ऑफ मोल्स ले लिए. इट इज अ विनाइल साइनाइड. ओके, अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन. तो होगा क्या कि CH2 CHCN अगेन रिएक्ट विद CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इनके साथ रिएक्ट होंगे. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे. इस कार्बन के वैलेंस से बढ़ेगा अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे. तो यहाँ पे CH2 CHCN अगेन CH2 CHCN
ये रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे मिलेगा, और दिस रिपीटिंग यूनिट undergoes polymerization reaction, or you will get Orlon or polyvinyl cyanide, that is called as Orlon. इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन टाइप का रिएक्शन। तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट हम लोग को चाहिए CH2CHCN, दिस इज रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आगे क्या करना है, CH2 रिपीटिंग यूनिट एज इट इज लिखना है आपको हर बार, आगे खाली N लगा देना है। तो विनाइल साइनाइड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन गिव्स पॉलीविनाइल साइनाइड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्लॉन, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, दैट इज ऑर्लॉन, पॉलीमर ऑर्लॉन आपको मिलेगा। ओके, so this is example of addition polymers in which the monomers with multiple bonds get added to each other, gives formation of polymer. Generally they follows a free radical mechanism जिसमें chain initiation, chain propagation और chain termination type of reactions होते हैं, and they are also called as chain growth polymerization, जिसका example लिया हम लोगों ने Orlon। The monomer which is used in Orlon is vinyl cyanide, ये स्ट्रक्चर है विनाइल साइनाइड का, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल साइनाइड, दैट इज ऑर्लॉन। ओके, दूसरा जो टाइप है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, वो हम लोग देखेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, व्हाट आर द कंडेंसेशन पॉलीमर? पॉलीमर्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर्स, पॉलीमर्स फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ monomers by loss of small molecules like water, methanol or ammonia. So these are the best example कि जब कंडेंसेशन क्या होता है, द कंडेंसेशन, दीज आर द पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स in which are the polymers which are formed by the condensation of monomers by loss of small molecules either water, methanol or ammonia. जब भी वो कंडेंस होंगे एक दूसरे के साथ, they undergoes condensation reaction by loss of water molecule like methanol, water or ammonia. These polymers also called as strip growth polymerization, they are called as strip growth polymerization, they are called as strip growth polymerization। और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6,6, ये एग्जाम बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, नाइलॉन 6,6। सो देखते हैं एग्जाम्पल, फिर से एक बार डेफिनेशन बता दो। व्हाट आर द कंडेंसेशन पॉलीमर? द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स in these are the polymers in which the monomers are condensed with each other by loss of small molecules like water, methanol or ammonia, and these polymers are called as strip growth polymerization, they are also called as strip growth polymerization। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने नाइलॉन 6,6 का। तो which monomer use in a preparation of nylon 6? पहला है फर्स्ट मोनोमर, दो अलग अलग मोनोमर यूज करते हैं। मोनोमर फर्स्ट that is hexamethylene diamine, hexamethylene diamine। second monomer that is adipic acid, it is also called as hexanedic acid, इसका नाम है। सो मोनोमर कौन सा है? पहला हेक्सामिथिलीन डायमाइन, तो HNCH2 6NH, ओके, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सामिथिलीन डायमाइन, तो इसको हम लोग नाम देंगे शॉर्टकट हेक्सामिथिलीन डायमाइन, HMDA, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। किसके साथ कंडेंस होता है? एडिपिक एसिड। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड? HOC डबल बॉन्ड O CH2 4
C double bond O OH. This is the structure of adipic acid. Adipic acid, it is also called as hexandinic acid. When they combine with each other, तो ये है बेस और ये एसिड. तो एसिड और बेस में एक सिंपल सा रिएक्शन होता है. एसिड में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव स्टेट में रहेगा और नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो NH3 नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NH4 प्लस और O माइनस. तो फर्स्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और पहले तो वो सॉल्ट जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइलॉन सॉल्ट. यहाँ पे NHCS2 6 NH3 या फिर NH3 करेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज और ये O माइनस सिंबल, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, C डबल बॉन्ड O CS2 4 C double bond OH. This is what we called as nylon salt. Nylon salt. क्योंकि एसिड ये बेस एसिड और ये बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट जनरेट करेगा विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. तो यहाँ पे रिएक्शन नॉर्मली ये होता है कि स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ से H2O ये कंप्लीट वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है यहाँ से. तो बाय लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और कंडेंस होना स्टार्ट हुए. तो यहाँ से जब ये कंडेंस होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइन का H, तो सेम वे यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा. तो रिपीटिंग यूनिट NHCS2 6 NHC डबल बॉन्ड O CS2 4 C डबल बॉन्ड O अगेन. सो ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग यूनिट, कंप्लीट रिपीटिंग यूनिट. और इस रिपीटिंग यूनिट के आगे हम लोग N लगा देंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6. तो इस मॉलिक्यूल में व्हाई इट इज कॉल्ड एज 6 नाइलॉन 6. तो नाइलॉन जनरली कंसिस्ट ऑफ, नाइलॉन में हमेशा नाइलॉन आर कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज इन बिटवीन देम. कौन सा लिंकेज है? अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2. It gives amide linkage in their structures. Okay, and they consist of 2 bundles of 6 carbon atom. तो यहाँ पे एक 6 कार्बन एटम का छोटा सा मोइटी है और यहाँ पे 6 कार्बन एटम का ये दूसरा ग्रुप 1 3 4 5 और ये 6 नाइलॉन 6. So these are the example of condensation polymer कि when 2 molecules of hexamethylene diamine and adipic acid condense with each other by loss of small molecules like water undergoes polymerization reaction gives a condensation polymer that is nylon 6. तो नाइलॉन्स में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? अमाइड लिंकेज के फॉर्म में वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये बेसिकली 2 मेजर टाइप थे क्लासिफिकेशन के बेस अपॉन द पॉलीमरेशन प्रोसेस. दे आर फर्स्ट एक लीनियर पॉलीमरेशन और दूसरा था कंडेंसेशन पॉलीमरेशन, एडिशन पॉलीमरेशन और कंडेंसेशन पॉलीमरेशन. इसमें एक छोटा सा और थर्ड पार्ट भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं. थर्ड पार्ट दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन. रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन. ring opening polymerization. When a cyclic compounds like lactam, lactams or cyclic ethers like lactones undergoes reaction with strong acid or strong base. When cyclic compounds like lactones or lactones undergoes reaction with under strong acid or strong base, they gives formation of ring opening polymers. तो जिसका बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, जिसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास है नाइलॉन 6.
नाइलॉन 6, इसमें हम लोग मोनोमर यूज करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। जनरली कि एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 1 2 3, okay, so this is the structure of epsilon caprolactam when treated with strong acid, in heating condition। तो ये जो बॉन्ड पोलर होता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके जब हम लोग इसको रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो NH 1 2 3 4 5 CH2 5 C double bond, this is the repeating unit, this is the repeating unit undergoes polymerization reaction, undergoes polymerization reaction and that is called as nylon 6. It gives formation of nylon 6. So nylon 6, it shows a strength of strong intermolecular binding force of attraction, strong intermolecular force of attraction through hydrogen bonding. तो nylon 6 की बात करें तो it shows strength, high tensile strength, it shows high strength or tensile strength due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding between किसके बीच में, between two molecules of एक तो अमाइनो ग्रुप and oxygen atom of carbonyl carbon, ओके। तो ये बॉन्डिंग कैसे होता है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो रिपीटिंग यूनिट हम लोगों ने ये लिखा NH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो सेम वे जब नेक्स्ट मोनोमर आएगा आपके यहाँ से NH CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये नाइट्रोजन पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज strong intermolecular hydrogen bonding, that is called as strong intermolecular hydrogen bonding, or due to formation of hydrogen bonding between oxygen of carbon and hydrogen of amino group, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाती है। दे शोज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन। So these are the classification of polymer based upon the polymerization process. So next topic, classification of polymer based upon the intermolecular force of attraction। दो मोनोमर के बीच में जो intermolecular force of attraction होगी, on that basis the polymers are classified into 4 types: elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting plastic। So let's start one by one of them। तो elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting plastic। What are the elastomers? Elastomers, when polymers stretch by external force, they stretch from their original position, and when
They restore their original shape, regain their original shape by release of force. So these are the polymers which shows the elastic properties, and they can held together by weak van der Waals force of attraction. They can held together by weak van der Waals force of attraction, and actually they shows cross link between in their chains. Hence the tearing of polymers is avoided. पॉलीमर जनरली ब्रेक क्यों नहीं होता? बिकॉज दे पॉलीमर जो होते हैं इलेस्टोमर्स दे शोज अ क्रॉस लिंक इन बिटवीन देम, उनमें नॉर्मली क्रॉस रिंग प्रेजेंट होता है. एग्जांपल हम लोग देखेंगे, मतलब ये पॉलीमर जो है दे शोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो देखेंगे दे शोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन देयर बिटवीन. तो एग्जांपल इसके पास इसका अपने पास बूना एस. What is a Buna S? Buna N. Buna मतलब 1,3-butadiene. S मतलब styrene. Buna again 1,3-butadiene. N stands for acrylonitrile. तो एग्जांपल देखते हम लोग पहले यहाँ पे Buna N का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल Buna N. तो दो मोनोमर यूज करते हैं. फर्स्ट monomer first is 1,3-butadiene. 1,3-butadiene CH3, 1,3-butadiene CH2 double bond CH double bond CH2. 1 2 3 4. वन और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और ब्यूटीन मॉलिक्यूल है. इट इज कॉल्ड एज 1,3-butadiene. सेकंड मोनोमर that is used is known as acrylonitrile. That is CH2 vinyl cyanide, CH और CN. तो ये अलग अलग मोनोमर हम लोग यूज करेंगे. इनमें दे अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन. तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 when 1,3-butadiene react with acrylonitrile CH2 double bond CN. तो पॉलीमरेशन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करके ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अंडरगोस एडिशन पॉलीमरेशन जो रिएक्शन. रिपीटिंग यूनिट हम लोग लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH और ये CN. दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट. और इस स्ट्रक्चर के आगे हम लोग अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन. CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CN. It gives formation of the structure of Buna N. This structure is called as Buna N. तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स. बाकी जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. हेलो फ्रेंड्स, in this lecture we will discuss the new chapter, that is polymers. The name of chapter is Introduction to the Polymer Chemistry. So in this chapter we go through the different types of polymers depending upon the source, depending upon their chemical structures, depending upon the mode of polymerization, depending upon their force of attraction between them, and whether they are biodegradable or non-biodegradable. So we will learn some applications, uses of polymers and classification of polymers. So first of all, what is the definition of polymer? Polymers are the macromolecules having higher molecular weight compounds with smaller repeating unit are called as monomers. So polymers are the macromolecules in which the smallest repeating unit undergoes either condensation or addition polymerization, gives formation of different polymers. The smallest
Repeating unit is called as monomers. In this reaction, the monomer react with another monomer, gives formation of dimer. Dimer again react with third monomer, it gives formation of trimer, and trimer on further chemical reaction gives tetramer, and finally it gives polymerization. So polymers, poly means many and merons means part. So when many parts are combined, gives corresponding polymers. So let's take the example of it. What are the polymers? Here we have example of PVC, that is polyvinyl chloride. Okay. So repeating unit in this structure, the repeating unit is monomer. यहाँ पे repeating unit जो है monomer that is vinyl chloride. Vinyl chloride, CH2 double bond CH and Cl. Okay. It is called as vinyl chloride. So vinyl chloride reaction जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, when n number of vinyl chloride CH2 double bond CHCl, this is a monomer of this PVC, undergoes polymerization reaction. क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सेकंड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट होगा CHCl, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे अटैक करेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट CH2 CHCl, so this is your repeating unit. ये complete. So undergoes polymerization reaction, it gives a repeating unit CH2 CL. This is a repeating unit, and repeating unit के आगे आपको खाली n लगा देना है, तो you will get corresponding polymers, that is CH2 CHCl, that is PVC, polyvinyl chloride. Okay, so it is a structure of PVC. ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे. तो जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं रिपीटिंग यूनिट, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग, उसमें से ये एरो जो है, दोनों बॉन्ड जो हम लोग जनरली बाहर निकालते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन यहाँ से भी कंटिन्यूशन में और आगे भी कंटिन्यूशन में रिएक्शन रहेगा. सो मोनोमर के आगे n, पॉलीमरेशन, रिपीटिंग यूनिट PVC, इसके n नंबर ऑफ मोल्स आपको लिखने हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमेरिक रिएक्शन और पॉलीमर्स. यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉलीमर देखा, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड का एक एग्जाम्पल देखा. अगेन हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज पॉलीईथीन. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पॉलीथीन वाला. So there are different examples. The natural polymers, that is nail, keratin, protein, DNA, polythene, nylon 6. These are the different example of polymers. दूसरा polythene. Polyethylene. So again monomer in this reaction, monomer जो रहेगा इसका, that is ethene molecule, CH2 double bond CH. It is a monomer of polyethylene. Again n number of ethene molecules, CH2 double bond CH2, undergoes polymerization reaction, undergoes polymerization. तो क्या होगा? एक इथीन मॉलिक्यूल दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड. आगे रिएक्शन कंटिन्यूशन में रहेगा और यू विल गेट रिपीटिंग यूनिट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. तो दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट. जो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग यूनिट. तो यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग यूनिट लिखेंगे CH2 ओके. और इसी रिएक्शन में अब लोग CH2 आगे n लगा देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज
पॉलीथीन, इट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। ये इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन, इट गिव्स पॉलीथीन मॉलिक्यूल। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। व्हाट आर द पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स having higher molecular weight compound. They are composed of smallest number of repeating unit, that is called as monomer, और monomer again repeat होगा one by one, तो it gives formation of dimer, trimer, tetramer and finally it gives formation of polymer. So depending upon, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तरफ, कि हाउ पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की तरफ हम लोग जाते हैं। Classification of polymer, generally depending upon first source, कहाँ से वो ऑप्टेन होते हैं। सोर्स आइदर नेचुरल रहेगा, सेमी सिंथेटिक रहेगा, सिंथेटिक रहेगा, डिपेंड करता है किस सोर्स से हम लोग उसको ले रहे हैं। फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सेकंड थिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स, third one depending upon the mode of polymerization, mode of polymerization, mode of polymerization. Fourth, depending upon the molecular force in between the molecular force in between them. Fifth one, depending upon their biodegradability. Whether they degraded by natural degradation process or not, depending upon their degradability. So source, chemical structure, mode of polymerization, molecular forces and biodegradability. So polymers are classified on the basis of these five things. They are classified into 5 different types. First हम लोग start करते हैं source. Depending upon the source, again the polymers are classified into 3 types. Classification of polymer depending upon source. First देखते हैं हम लोग classification of polymers depending upon source or based on source. They are classified again 3 types. Polymers on the basis of their source, they are classified into 3 types. First one is a natural, second one is synthetic, and third one semi-synthetic. They are classified into 3 types: natural, synthetic and semi-synthetic. So first start करते हैं, what is a natural polymers? Natural polymers. What are the natural polymers? The polymers which is obtained from the natural source. They are obtained from natural source like plant or animal. Plant or animal are called as natural polymers. So the polymer which is obtained from the natural sources, either from the plant or animal. So when we discuss फ्रॉम प्लांट्स, जब हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट में हम लोग देखेंगे सेल्यूलोज, जूट, उसके बाद लिनिन एंड रबर. दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल सोर्स जो प्लांट से मिलते हैं. प्लांट से हम लोगों को सेल्यूलोज जो लकड़ी से मिलता है, जूट, लिनिन,
रबर, these are the natural sources, प्लांट से मिलते हैं. That's why all these polymers are called as natural polymers and they are obtained from the plants. Some polymers, their source is also natural, उनके source जो है वो naturally है, but they are obtained from animals, जिसमें हम लोग देखेंगे ऊल और सिल्क. सो ये अलग अलग टाइप है उसमें कि पॉलीमर्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट और एनिमल, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स. फ्रॉम प्लांट्स में हम लोग देखेंगे सेल्यूलोज, ज्यूट, लिनिन, रबर. और फ्रॉम एनिमल्स यहाँ पे है वुड और सिल्क. ओके, तो ये थे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स. बढ़ते आगे, सेकेंड टाइप दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर. व्हाट आर द सिंथेटिक पॉलीमर? Synthetic polymer, the polymer which is completely man-made, the polymers which are man-made, synthesized into the laboratory, obtained from different chemicals, obtained by the chemical reactions, they are synthesized into the laboratory or industries. These are the called as synthetic polymer. The polymer which is completely man-made, obtained from chemical reactions से वो मिलेंगे हम लोग, chemical reactions. They are synthesized into the laboratory, laboratories or in industries. These polymers are called as synthetic polymer. तो एग्जाम्पल हम लोग इसके देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर बिकॉज इट का सोर्स जो है वो कम्प्लीटली मैनमेड, केमिकल रिएक्शन से उनको ऑब्टेन किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे तो टेरिलिन, ओके, टेरिलिन, पॉलीथीन, polyvinyl chloride. So these are the different example of synthetic polymer. Synthetic polymers completely man-made होते हैं, obtained from the chemical reactions. They are synthesized into the laboratory and obtained from different chemicals. Example देखिए नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीथीन और PVC, polyvinyl chloride. ओके, सो बढ़ते आगे थर्ड टाइप की तरफ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. So what are the semi synthetic polymers? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर्स जिसका हाफ सोर्स नेचुरल होता है, द हाफ सोर्स इज नेचुरल एंड हाफ सोर्स इज केमिकली मॉडिफाइड और मॉडिफिकेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड बाय केमिकल ट्रीटमेंट. सिंपल सी बात है कि जिसमें हाफ सोर्स, सपोज कॉटन यूज़ किया हम लोगों ने, तो कॉटन की केमिकल ट्रीटमेंट करके हम लोग उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी या टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो है नॉर्मल प्रॉपर्टीज उनको हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे. सिल्क जो है जिसको कॉपर और अमोनिया के क्यूपरा अमोनियम सिल्क हम लोग सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो जिसका हाफ सोर्स नेचुरल है, हाफ सोर्स सिंथेटिक रहेगा. मतलब हाफ सोर्स इज नेचुरल एंड हाफ सोर्स इज केमिकली मॉडिफिकेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर मॉडिफाइड by some chemical treatment. So the properties of natural polymers are modified by using chemical treatment. Okay, so let's do the example of this. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो सेल्यूलोज ये नेचुरल ऑब्टेनिंग पॉलीमर है.
when react with acetate it gives cellulose acetate rayon, जिसका हाफ सोर्स नेचुरल है और उसमें एसिडेट की ट्रीटमेंट करके हम लोग सेमी सिंथेटिक टाइप ऑफ पॉलीमर जनरेट करेंगे। इसके एग्जांपल स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखने वाली है, ये जस्ट क्लासिफिकेशन हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे सिल्क, तो क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, सिल्क पे हम लोग कॉपर और अमोनिया का ट्रीटमेंट करके उसके प्रॉपर्टीज जो है नेचुरल प्रॉपर्टीज को और मॉडिफाइड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉलीमर्स based upon the source. They are classified into natural, synthetic and semi-synthetic. What are the natural polymers? The polymers which are obtained from the natural source like plant or animal. Plant से हम लोगों ने देखे they are man-made, they are obtained from plants, that is cellulose, jute, lignin or rubber. From animals wool, silk, these are the different examples. Okay, उसके बाद हम लोग बढ़े आगे synthetic polymers की तरफ. What are the synthetic polymer? These are the polymers which are completely man-made, obtained by the chemical reaction. They are synthesized into the lab or industries. Example देखें nylon, toluene, polythene, okay, polyvinyl chloride, PVC, different example वहाँ पे. फिर आगे बढ़े हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की तरफ. What are the semi synthetic polymer? The properties of natural polymers are modified by some chemical treatment. नेचुरल पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी जो है उनको हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करके और मॉडिफाइड करेंगे. ओके, मीन्स देयर हाफ सोर्स इज नेचुरल एंड हाफ सोर्स इज केमिकली मॉडिफिकेशन. ओके, एग्जांपल देखिए कि सेलुलोज व्हेन ट्रीटेड विद एसीटेट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज एसीटेट रेयॉन. क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर्स. Polymers classification based on the structure. Classification of polymer based on structure. So polymers based upon structures are classified into again three types. First one, it is a linear polymer. Linear polymer. Second is branch polymer. And third one is cross-link or network polymer. Okay, so depending upon the structure, either they are continuously bind with each other and gives a longest continuous chain, उस पॉलीमर को बोलेंगे लीनियर पॉलीमर. The longest continuous chain with small branching, they are called as branch polymer. Okay, and the polymers which undergoes cross-linking network polymers, cross-linking bonds, they are called as cross-link network polymers. So देखते हैं one by one. First start करते हैं हम लोग what are the linear polymers. What are the linear polymers? Example के साथ जाएंगे इनके. So what are the linear polymers? The linear polymers which is made of long continuous chains of these are the made up of longest continuous chains of polymers without branching. So what are the linear polymer? These are the polymers which is made up of longest continuous chains of polymers without excess branching or without branching, joined by the continuous chains. They are joined by the continuous chain. Okay, so let's take the example of this. For example, polythene. Okay, so what is the monomer of polythene? Example की हम लोग बात करें, CH2 double bond CH2, n number of monomers लिए हम लोगों ने. मोनोमर है इथिन मॉलिक्यूल,
अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्या मिलेगा आपको, रिपीटिंग यूनिट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट, okay, which on continuation of reaction gives CH2 and that is polythene, okay, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, CH2 एक दूसरे के साथ लॉन्गेस्ट चेन जो जनरेट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। एक इथीन मॉलिक्यूल दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिपीट होगा तो इथीन इट इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, रिपीटिंग यूनिट और पॉलीथीन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चेन है एक कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन में जाएंगे विदाउट एनी ब्रांचिंग, सो दीज आर द मेड अप ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन्स आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है, दूसरा टाइप अपने पास है दैट इज ब्रांच पॉलीमर। branch polymer, what are the branch polymer? The polymers consist of long straight chain with smaller chain as a branching. Okay, so what are the branch polymer? The polymer chains which is consist of longest chain with small chain as a branching, and they have, the important point is they have low density. Why they show low density? Because ब्रांचिंग की वजह से बाइंडिंग जो है उतनी यूनिफॉर्म हो नहीं पाती, जिसकी वजह से चैनल, एयर चैनल बच जाते हैं मॉलिक्यूल में, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एयर चैनल्स उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, सो व्हाट आर द ब्रांच पॉलीमर? द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन विदाउट स्मॉलर चेन एज अ ब्रांचिंग एंड दे आर ऑफ लो डेंसिटीज। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई द ब्रांच पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स ऑफ लो डेंसिटी। तो उसका रीज़न ही है कि ड्यू टू ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल कैनॉट बी कम्पैक्टली अरेंज विथ ईच अदर, तो जिसकी वजह से वैकेंट स्पेस ज़्यादा बच जाता है और उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, डेंसिटी उनकी कम हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल पॉलीप्रोपिलीन, एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने प्रोपिलीन मॉलिक्यूल का। सो मोनोमर इज प्रोपिलीन मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन, n नंबर ऑफ मोल लिए हम लोगों ने, अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन। तो ये जो है एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्डिंग CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट। ओके, अंडरगोज पॉलीमरेशन CH3 CH2, repeating unit undergoes polymerization reaction CH2 CH3, n नंबर ऑफ मोल्स लिए, तो प्रोपिलीन जो है उसके पॉलीप्रोपिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन और इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। सो यहाँ पे ये जो नॉर्मल चेन है ये कंटिन्यूस चेन आपको मिलेगा विथ स्मॉलर ब्रांचिंग ऑफ CH3, दैट्स वाई
it is called as branch polymer. The polymer consists of longest continuous chain with smaller chains or smaller chains as a branching. तो यहाँ पे CH3 as a branching वहाँ पे आपको मिलेगा. Okay, so this is example of polypropylene. When propylene, n number of moles of propylene, it is a monomer of polymer polypropylene undergoes addition type of polymerization. Repeating unit आपको ये मिलेगा. पॉलीमरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं खाली नॉर्मली, और इट इज गिव्स अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीप्रोपिलीन. सो दिस इज अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विथ स्मॉल CH3 एज अ ब्रांचिंग. छोटा CH3 जो है ये एज अ ब्रांचिंग वहाँ पे आपको मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टाइप, दैट इज बेस अपॉन स्ट्रक्चर, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन जो है, इट इज अ क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर. क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर. So what is a cross-link or network type of polymer? The polymer which consists of, the polymers consist of chains by strong covalent bond, gives a network like structure. Network like structure. Use network like structure. So what are the cross-linked polymers? The polymers which consist of chain held together by strong covalent bond gives a network like structure are called as cross-link or network type of polymers. तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जांपल बैकेलाइट या फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. Vulcanization of rubber. What is the vulcanization of rubber? It is a process of hardening of natural rubber by addition of sulfur is called as vulcanization of rubber. Natural rubber जो होता है उसका हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर ऐड करते जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर और बैकेलाइट. बैकेलाइट हम लोग आगे फिर से एग्जांपल में देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. थर्ड टाइप हम लोग देखेंगे बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. Classification based on polymerization process. It is the most important part है polymerization process. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है. इसमें दो टाइप होते हैं. एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन बेस अपॉन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, मतलब टू मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइन तो एक दूसरे के साथ वो ऐड होते हैं या फिर दे कंडेंस बाय लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और मिथेनॉल. पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. एक है एडिशन पॉलीमर और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो स्टार्ट करते हैं. पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन? फर्स्ट वन, these are the polymers in which the molecules are added together. Two monomers are added together and gives formation of polymers. Okay, so इसमें important part इसका है the polymers or monomers with multiple bonds, मतलब they must contain double or triple bond in the structures. Mostly डबल और ट्रिपल बॉन्ड उनमें होता है. ओके,
सेकंड थिंग हम लोग देखेंगे इस पॉलीमर्स की खासियत ये होती है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन, दे आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन, they also called as chain growth polymerization. This process or addition polymers are also called as chain growth polymerization. Point number 3, these reactions are generally free radical reaction. Free radical reaction, जब addition reaction होगा polymerization में, addition polymerization की reaction जब होगी तो they undergoes और normally they follows फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती है. एक होती है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड वन चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप. So what are the addition polymers? Addition polymers are the monomers with multiple bond. They must contain, और उनमें हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Second thing, the chain growth, they are called as chain growth polymerization, they also called as chain growth polymerization. And generally during the addition of monomers, in which during the addition of monomer they always follows the free radical mechanism, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप को फॉलो करते हैं. चेन इनिशिएशन स्टेप, व्हाट इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप? इट इज अ स्टेप इन विच द रिएक्शन गेट इनिशिएटेड बाय फर्स्ट फ्री रेडिकल. यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं. उसके बाद फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होकर कार्बन का लेंथ बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चेन प्रोपिगेशन. और फाइनली सभी फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नॉर्मली चेन रिएक्शन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका. द एग्जांपल ऑफ दिस इज ऑर्लॉन. व्हाट इज ऑर्लॉन? इट इज आल्सो ऑर्लॉन. द मोनोमर यूज इन ऑर्लॉन इज विनाइल साइनाइड, vinyl cyanide. The monomer used in Orlon is vinyl cyanide. तो एग्जांपल देखते हैं एडिशन पॉलीमर कैसे है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एडिशन पॉलीमर्स के. जैसे हम लोग बात करें पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सभी जो है वो एडिशन टाइप के बेस्ट एग्जांपल है. एडिशन एग्जांपल या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमरेशन के बेस्ट एग्जांपल है. लेकिन ये जो अलग टाइप के एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऑर्लॉन. ऑर्लॉन में मोनोमर जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज विनाइल साइनाइड. विनाइल साइनाइड इट इज अ मोनोमर. तो विनाइल साइनाइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, C ट्रिपल बॉन्ड, n नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, इट इज अ विनाइल साइनाइड. ओके. अंडरगोस पॉलीमरेशन रिएक्शन, अंडरगोस पॉलीमरेशन. तो होगा क्या कि CH2 CHCN अगेन रिएक्ट विद CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इनके साथ रिएक्ट होंगे. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे. इस कार्बन के वैलेंस से बढ़ेगा अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे. तो यहाँ पे CH2 CHCN अगेन CH2 CHCN, ये रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे मिलेगा. और दिस रिपीटिंग यूनिट undergoes polymerization reaction or you will get Orlon or polyvinyl cyanide, that is called as Orlon. इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं एडिशन टाइप का रिएक्शन. तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट हम लोग को चाहिए CH2 CHCN, दिस इज रिपीटिंग यूनिट. रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे undergoes polymerization reaction. तो यहाँ पे आगे क्या करना है CH2 रिपीटिंग यूनिट एज इट इज लिखना है आपको हर बार, आगे खाली n लगा देना है. तो विनाइल साइनाइड अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन गिव्स पॉलीविनाइल साइनाइड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्लॉन. इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, दैट इज ऑर्लॉन. पॉलीमर ऑर्लॉन आपको मिलेगा. ओके.
So this is example of addition polymer key in which the monomers with multiple bonds get added to each other, gives formation of polymer. Generally they follows a free radical mechanism जिसमें chain initiation, chain propagation और chain termination type of reactions होते हैं, and they are also called as chain growth polymerization, जिसका example लिया हम लोगों ने Orlon. The monomer which is used in Orlon is vinyl cyanide. ये structure है vinyl cyanide का, undergoes polymerization reaction, it gives formation of polyvinyl cyanide, that is Orlon. Okay. दूसरा जो टाइप है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, वो हम लोग देखेंगे. कंडेंसेशन पॉलीमर, condensation polymer. What are the condensation polymer? Polymers formed by the condensation of monomers. Polymers formed by the condensation of monomers by loss of small molecules like water, methanol और अमोनिया. सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल कि जब कंडेंसेशन क्या होता है. द कंडेंसेशन, दीज आर द पॉलीमर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स in which are the polymers which are formed by the condensation of monomers by loss of small molecules either water, methanol और ammonia. जब भी वो कंडेंस होंगे एक दूसरे के साथ, they undergoes condensation reaction by loss of water molecule like methanol, water or ammonia. These polymers also called as step growth polymerization. They are called as step growth polymerization. They are called as step growth polymerization. और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका. फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6,6, ये एग्जाम बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, नाइलॉन 6,6. सो देखते हैं एग्जाम्पल. फिर से एक बार डेफिनेशन बता दो. व्हाट आर द कंडेंसेशन पॉलीमर? द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स इन दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर कंडेंस विथ ईच अदर by loss of small molecules like water, methanol or ammonia, and these polymers are called as step growth polymerization. They are also called as step growth polymerization. Example लिया हम लोगों ने nylon 6,6 का. तो which monomer used in the preparation of nylon 6? पहला है फर्स्ट मोनोमर. दो अलग अलग मोनोमर यूज करते हैं. मोनोमर फर्स्ट दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन, hexamethylene diamine. second monomer that is adipic acid. It is also called as hexanedic acid, इसका नाम है. सो मोनोमर कौन सा है? पहला हेक्सामिथिलीन डायमाइन. तो HN CS2 6NH. okay, this is called as हेक्सामिथिलीन डायमाइन. तो इसको हम लोग नाम देंगे शॉर्टकट हेक्सामिथिलीन डायमाइन, HMDA, हेक्सामिथिलीन डायमाइन. किसके साथ कंडेंस होता है? एडिपिक एसिड. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड? HO C डबल बॉन्ड O CS2 4 C डबल बॉन्ड O OH. This is the structure of adipic acid. It is also called as hexanedic acid. When they combine with each other, तो ये है बेस और ये एसिड. तो एसिड और बेस में एक सिंपल सा रिएक्शन होता है. एसिड में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव स्टेट में रहेगा और नाइट्रोजन अपनी लोन पर इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो NH3 नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NH4 प्लस और O माइनस. तो फर्स्ट when they react with each other undergoes condensation reaction होगा और पहले तो वो सॉल्ट जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइलॉन सॉल्ट. यहाँ पे NHCS2 6NH3 या फिर NH3 करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, और ये O माइनस
सेम ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड OH. This is what we called as nylon salt. नाइलॉन सॉल्ट, क्योंकि एसिड ये बेस एसिड और ये बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट जनरेट करेगा विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यहाँ पर रिएक्शन नॉर्मली ये होता है कि स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ से H2O ये कंप्लीट वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है यहाँ से, तो बाय लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और कंडेंस होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से जब ये कंडेंस होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइन का H, तो सेम वे यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो रिपीटिंग यूनिट NHCH2 6 NHC डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O अगेन। सो ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग यूनिट, कंप्लीट रिपीटिंग यूनिट, और इस रिपीटिंग यूनिट के आगे हम लोग N लगा देंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6। तो इस मॉलिक्यूल में वाई इट इज़ कॉल्ड एज 6 नाइलॉन 6। तो नाइलॉन जनरली कंसिस्ट ऑफ, नाइलॉन में हमेशा नाइलॉन आर कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज इन बिटवीन देम। कौन सा लिंकेज है? अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2 gives amide linkage in their structure. Okay, and they consist of 2 bundles of 6 carbon atom. तो यहाँ पे एक 6 कार्बन एटम का छोटा सा मोइटी है और यहाँ पे 6 कार्बन का ये दूसरा ग्रुप 1 3 4 5 और ये 6 नाइलॉन 6. So these are the example of condensation polymer कि when two molecules of hexamethylene diamine and adipic acid condense with each other by loss of small molecules like water undergoes polymerization reaction gives a condensation polymer that is nylon 6. तो नाइलॉन्स में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? अमाइड लिंकेज के फॉर्म में वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये बेसिकली दो मेजर टाइप थे क्लासिफिकेशन के बेस अपॉन द पॉलीमरेशन प्रोसेस. दे आर फर्स्ट एक लीनियर पॉलीमरेशन और दूसरा था कंडेंसेशन पॉलीमरेशन, एडिशन पॉलीमरेशन और कंडेंसेशन पॉलीमरेशन. इसमें एक छोटा सा और थर्ड पार्ट भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं. थर्ड पार्ट दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन. रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन. Ring opening polymerization. When a cyclic compounds like lactam, lactams or cyclic ethers like lactones undergoes reaction with strong acid or strong base. When cyclic compounds like lactones or lactones undergoes reaction with under strong acid or strong base, they gives formation of ring opening polymers. तो जिसका बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, जिसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास है नाइलॉन 6. नाइलॉन 6 इसमें हम लोग मोनोमर यूज करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. जनरली कि एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3. Okay, so this is the structure of epsilon caprolactam. When treated with strong acid in heating condition, तो ये जो बॉन्ड पोलर होता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अंडरगोज
रिंग ओपनिंग पॉलीमरेशन। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके जब हम लोग इसको रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो NH 1 2 3 4 5 CH2 5 C double bond OH. This is the repeating unit. This repeating unit undergoes polymerization reaction. Undergoes polymerization reaction. And that is called as nylon 6. It gives formation of nylon 6. So nylon 6, it shows a strength of strong intermolecular binding force of attraction, strong intermolecular force of attraction through hydrogen bonding. तो नायलॉन 6 की बात करें तो it shows strength, high tensile strength. It shows high strength or tensile strength due to intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding between किसके बीच में? between two molecules of एक तो अमाइनो ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो ये बॉन्डिंग कैसे होता है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो रिपीटिंग यूनिट हम लोगों ने ये लिखा NHCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो सेम वे जब नेक्स्ट मोनोमर आएगा आपके यहाँ से NHCH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये नाइट्रोजन पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज strong intermolecular hydrogen bonding. That is called as strong intermolecular hydrogen bonding, or due to formation of hydrogen bonding between oxygen of carbon and hydrogen of amino group, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाती है। दे शोज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन। So these are the classification of polymer based upon the polymerization process. So next topic, classification of polymer based upon the intermolecular force of attraction. दो मोनोमर के बीच में जो intermolecular force of attraction होगी, on that basis the polymers are classified into 4 types: elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting plastic. So let's start one by one of them. So elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting plastic. What are the elastomers? Elastomers, when polymers stretch by external force, they stretch from their original position, and when they restore their original shape, regain their original shape by release of force. So these are the polymers which shows the elastic properties, and they can held together by weak van der Waals force of attraction. They can held together by weak van der Waals force of attraction, and actually they shows cross link between in their chains. Hence the tearing of polymers is avoided. पॉलीमर जनरली ब्रेक क्यों नहीं होता? बिकॉज दे पॉलीमर जो होते हैं इलेस्टोमर्स, दे शोज अ क्रॉस लिंक इन बिटवीन देम। उनमें नॉर्मली क्रॉस रिंग प्रेजेंट होता है। एग्जांपल हम लोग देखेंगे, मतलब ये पॉलीमर जो है दे शोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो देखेंगे, दे शोज इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन देयर बिटवीन। तो एग्जांपल इसका है अपने पास बूना एस। What is a Buna S? Buna N.
बूना मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, एस मतलब स्टायरीन, बूना अगेन 1,3-ब्यूटाडाइन, एन स्टैंड्स फॉर एक्रोनाइट्राइल। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग पहले यहाँ पे बूना एन का, बूना एन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बूना एन। तो दो मोनोमर यूज करते हैं। फर्स्ट मोनोमर फर्स्ट इज 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन CH3, 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, 1 और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, इट इज कॉल्ड एज 1,3-ब्यूटाडाइन। सेकंड मोनोमर that is used is known as acrylonitrile, acrylonitrile, that is CH2 विनाइल साइनाइड CH और CN। तो ये अलग अलग मोनोमर हम लोग यूज करेंगे। इनमें दे अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 when 1,3-butadiene react with acrylonitrile CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो पॉलीमरेशन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करके, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अंडरगोज एडिशन पॉलीमरेशन रिएक्शन। रिपीटिंग यूनिट हम लोग लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH और ये CN। दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट। और इस स्ट्रक्चर के आगे हम लोग अंडरगोज पॉलीमरेशन रिएक्शन, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH CN, it gives formation of the structure of Buna N. This structure is called as Buna N. तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर्स। बाकी जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर।